Hello everyone, welcome you all in online teaching learning classes. Myself Miss Mranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on seepage through earthen structure. Vision of the program: to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department, that is M1, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineers. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit student. Now the course outcome: use the result of permeability and shear strength test for the foundation analysis. Program outcome is that PO1, PO2, PO4, PO5, PO6 and PO7. Now the unit outcome: after completion of this video lecture, student will able to identify the factors affecting the permeability of given type of soil sample. First of all, we will discuss about seepage definition. Seepage is two-dimensional flow where velocity varies in both horizontal and vertical direction. Whereas in both horizontal and vertical direction, whereas Darcy equation consider one-dimensional flow for analysis of seepage and Laplace equation is used. सीपेज डेफिनेशन क्या होती है? ये टू डायमेंशनल फ्लो होता है जो वेलोसिटी वेरीज करती है बोथ हॉरिजेंटली भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी, ठीक है। और इसमें जो डार्सी इक्वेशन है वो कंसिडर करते हैं वन डायमेंशनल फ्लो के वक्त फॉर एनालिसिस ऑफ सीपेज। अगर वन डायमेंशनल फ्लो है तो डार्सी इक्वेशन से कंसिडर किया जाएगा और एनालिसिस किया जाएगा कि सीपेज किस तरीके से वो पर्टिकुलर सॉइल में हो रहा है। लैप्लास इक्वेशन इज़ यूज, फिर लैप्लास इक्वेशन का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे। अकॉर्डिंग टू डार्सी इक्वेशन, V equals to Ki and discharge equals to Q equals to VA. V equals to superficial velocity of flow because the actual flow is through the area voids and not through the entire cross section area. According to Darcy law, permeability can be defined as the superficial velocity of flow under a unit hydraulic gradient. Now, the seepage velocity. अब ये seepage velocity क्या है? Actual velocity of flow through the void is called as seepage velocity, Vs. Then hence, Q equals to VA equals to Vs into AV. V equals to Vs into AV divided by A. ये पूरे इक्वेशन है. AV डिवाइडेड बाय A इक्वल्स टू VV डिवाइडेड बाय V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N. Then V equals to N into Vs and V equals to E divided by E plus 1 plus V. Now N is always less than 1. Seepage velocity is always greater than the superficial or discharge velocity. जो N है वो ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए और सीपेज जो वेलोसिटी है वो हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए किसके? सुपरफिशियल और डिस्चार्ज वेलोसिटी के. Then seepage pressure. It is additional pressure caused by frictional force acting on the surface of the particles. Seepage pressure causes drag of the water in opposite direction of the flow. When flow of water occur, drag of the water in a opposite direction of the flow.
जिस तरीके से आप इसमें देख रहे हैं कि सीपेज फोर्सेस है, ठीक है, देन फ्लो ऑफ वाटर इस तरीके से होगा। तो ये क्या है, ये एक एडिशनल प्रेशर रहता है जो कि किसके वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल। अगर फ्रिक्शन फोर्सेस जो है वो एक्टिंग करेंगे सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स में, तब जाके एडिशनल प्रेशर उसमें क्या होगा, ऑकर होगा। सीपेज प्रेशर कॉज ड्रैग ऑफ द वाटर इन अपोजिट डायरेक्शन। सीपेज प्रेशर और किस वजह से हो सकता है, ड्रैग ऑफ वाटर इन अपोजिट डायरेक्शन में जब होता है तब। व्हेन फ्लो ऑफ वाटर ऑकर ड्रैग ऑफ द वाटर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे पेरियाटिक लाइन क्या होती है। पेरियाटिक लाइन, व्हेन फ्लो ऑफ वाटर ऑकर थ्रू सॉइल, जब भी फ्लो ऑफ वाटर ऑकर थ्रू सॉइल, द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लो जोन इज कॉल्ड एज अ पेरियाटिक सरफेस। ठीक है, जब भी वाटर का फ्लो किसी सॉइल के ऊपर होता है तो जो टॉप सरफेस जो भी है, टॉप सरफेस का जो फ्लो जोन है, एकदम टॉप मोस्ट लेयर, सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर का जो फ्लो जोन है उसे पेरियाटिक सरफेस बोला जाता है। इन द सेक्शन टॉप लाइन फ्लो जोन इज कॉल्ड एज अ पेरियाटिक लाइन, और सेक्शन टॉप लाइन फ्लो जोन इज कॉल्ड एज अ पेरियाटिक लाइन, उसे बोलेंगे पेरियाटिक लाइन। ठीक है, जो टॉप लाइन जो भी सरफेस है, फॉर एग्जांपल सॉइल का सरफेस है, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, बट उसकी एकदम टॉप सरफेस में जो लाइनिंग दिखाई देती है वाटर के वजह से, उसको क्या बोलेंगे, पेरियाटिक लाइन। इन अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स ऑल द पॉइंट ऑन द पेरियाटिक लाइन हैव अ इक्वल सीपेज प्रेशर एंड इट कैन बी टेकन एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए जो भी पॉइंट जो भी है इसमें ऑन द पेरियाटिक लाइन के लिए हैव अ इक्वल सीपेज प्रेशर होना चाहिए। इट कैन बी टेकन एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे कि ये क्या है, पेरियाटिक लाइन, ये सीपेज लाइन। ठीक है, देन पेरियाटिक लाइन को ही सीपेज लाइन बोल सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर है, जिस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे लाइनिंग दिखाई दे रही होगी, तो ये क्या है, पेरियाटिक लाइन, और इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन नेक्स्ट है फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। व्हेन वाटर फ्लो थ्रू सॉइल इन अ लैमिनर फ्लो condition, the path along which the layers of a water flow are called as a flow line. Line joining point of equal pressure along the flow line of the equipotential line. You have to see the image of equipotential line and flow line. ये जितनी भी लाइन है उसको equipotential line बोलते हैं, ये जितनी भी लाइन है इसको क्या बोलेंगे, फ्लो लाइन। जब भी वाटर फ्लो होता है सॉइल से, बट लैमिनर कंडीशन में, एकदम स्ट्रेट पाथ में, तो वो जो पाथ है अलॉन्ग विद द लेयर ऑफ द वाटर फ्लो, उसको बोला जाता है फ्लो लाइन। एंड लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल प्रेशर, और वही लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं इक्वल प्रेशर के साथ, तो उसको बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल लाइन। ओके, सिंपल है ये फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ फ्लो नेट। इट इज़ द ग्रिड नेटवर्क फॉर्म ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो स्ट्रीम। ठीक है, ये एक ग्रिड नेटवर्क है, और ये फॉर्म कैसा हो जाता है, ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन के वजह से और इक्विपोटेंशियल लाइन के वजह से। जब इंटरसेक्शन होता है फ्लो स्ट्रीम लाइन का और इक्विपोटेंशियल लाइन का, तो वो फ्लो नेट कहलाता है। यू हैव टू सी द इमेज। ठीक है, इंटरसेक्शन हुआ किसका, फ्लो स्ट्रीम लाइन का और इक्विपोटेंशियल लाइन का, जैसे कि, और ये क्या बन गया, फ्लो नेट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो नेट। The flow line and equipotential line in the flow net intersect each other orthogonally. The area of the field formed due to intersection of this line is approximately square. The quantity of water flowing through each channel is almost same. ठीक है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लो नेट की, किस पे डिपेंड करती है, फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन पे। इन द फ्लो नेट इंटरसेक्ट ईच अदर
ऑर्थोगोनली, ठीक है। अब जो इक्विपोटेंशियल लाइन है और फ्लो लाइन है उसका इंटरसेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनली, ठीक है। देन द एरिया और फील्ड फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर होना चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ईच चैनल इज ऑलमोस्ट सेम। Smaller dimension of the field indicate greater hydraulic gradient and more velocity of flow. The potential drop between two adjacent equipotential line is same. Now the summary of this session हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है, तो वो है सीपेज डेफिनेशन हमने देखा, सीपेज वेलोसिटी, सीपेज प्रेशर, पैराटिक लाइन, फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, definition of flow net. Now these are the MSBT question which is generally asked in examination. First, explain with sketch flow net. Define flow net, state its properties, state flow net characteristics, explain periodic line in a earthen dam with a sketch. Thank you.